Hello friends, my name is Harshit and I've secured All India Rank 26 in the UPSC CAPF Assistant Commandant exam of 2024, and at CDS Journey I take paper 2 classes for the CAPF batch. For your preparation journey we have made a new Telegram channel by the name of CPF Journey जिसका link आपको description में मिल जाएगा. So if you want any guidance, resource material, paper 2 material, we provide that in the Telegram channel, and we provide monthly CAPF boosters booklet also जिससे आपको content में gather करने में help होगी. And in this video हमने essay को cover किया है, what are the basics of the essay and what are the things जो एग्जामिनर चाह रहा है एक स्टूडेंट से इन द एग्ज़ाम, है ना. सो मैंने उसको खुद कवर किया है एज टू व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड वेल राइटिंग एन एसे एंड व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ राइटिंग एसे, है ना. एंड 2025 एग्ज़ाम का एक PYQ भी हमने डिस्कस किया है. सो मेक श्योर आप इसको वेरी अटेंटिवली देखें एंड प्लीज़ कमेंट्स में ये बताइए कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट फ्रॉम अस, है ना, कि हम और कैसे वीडियोस ला सकते हैं विच वुड हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी, वेदर इट इज़ ऑन रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट और प्रेसी, एनीथिंग विच यू guys want, we'll be there to help you in your preparation journey. When we look about paper 2, so here we get 4 essays, 2 arguments and 2 reports. Okay, so by default आपके essays जो हैं बहुत important हो जाते हैं if you want to score good marks in paper 2. And for those of you who don't know me, I am Harshit. I have secured All India Rank 26 in UPSC CAPF Assistant Commandant exam of 2024, and I scored 103 marks in my paper 2. So I believe what I'll be sharing is from my experience, and I believe that it will be very helpful to you, है ना. So let's move on. When we discuss about the component which is essay, so in the actual examination we get 6 options, है ना? And out of these 6 we have to write 4 essays. Each essay carries 20 marks. So total हमारे हो जाते हैं 80 marks, है ना. 80 marks total for the essays. Each essay should be of 300 words, है ना. The official word limit is 300 words. इससे ज़्यादा लिखोगे then you can also be penalized, है ना. We have to attempt any 4 out of the given 6 topics, है ना. हम 4 essays choose कर सकते हैं, हमें जो पसंद हो हम वो लिख सकते हैं. And what the evaluator is looking for in those essays is your clarity of thought, your balanced reasoning, the structure of your essay, the language proficiency which your essay will show, and that your ideas are original or not, है ना. So whatever essays which come in the CAPF paper 2, they can be divided into various themes, है ना. हर साल अलग अलग थीम आती है. मल्टीपल थीम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही थीम से दो दो ऐसे हो गए, 3 ऐसे हो गए. सो दैट कैन ऑल्सो हैपन, है ना. सो here are some themes, examples हैं ये. These are not watertight themes कि इन्हीं से आता है. These are just examples like social issues, economic, developmental, national security and polity, science and environment, abstract, philosophical essays. This trend has started since 2023, है ना. Earlier ऐसे essays नहीं आते थे, but now UPSC has started abstract essays, philosophical essays in the paper 2. So this is emerging as a new theme, and हर साल एक question, एक essay is coming from this theme, है ना. 2025 में भी था, 24 में भी था, and if the trend is like this only, तो 2026 में भी होगा. Some other themes which I can remember right now is international relation, है ना, internal security, governance. So these are also some themes. So यही है कि जो भी आपके essays आएंगे, योर एजेंडा शुड बी कि आप अपनी प्रिपरेशन में इन थीम्स को कवर करें, बिकॉज टॉपिक्स आप कभी कवर नहीं कर सकते, बट व्हाट यू कैन डू इज आप थीम्स को कवर कर सकते हैं ना.
सो अपना फोकस दीजिए कि यू आर एबल टू कंप्लीट ऑल द थीम्स, ऑल द important themes which can be asked. So if we talk about कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे का, so it should be, if we talk about the structure of essay, it should have a good introduction, okay, of 40 to 50 words. Body should have at least 3 paragraphs, है ना? Your body of the essay should have at least 3 paragraphs, at least three, है ना? The body covers the major chunk of your essay. About 200 words goes into the body of the essay. Then coming on to the last portion, it is conclusion. Okay. कंक्लूजन में आपको आपने जो भी कुछ लिखा है उसको समराइज करना है, अपने ऐसे को कोशिश करना है कि आप एक पॉजिटिव टोन पे खत्म करते हैं, है ना? You should end your essay as in a positive tone by giving some solutions, by showing that ये way forward हो सकता है, and everything in the conclusion should be covered in maximum 50 words. तब जाके आपका ऐसे 300 वर्ड के अंदर खत्म होगा. I hope this is clear to you. एक एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो जैसे टॉपिक है सेल्फ रिलायंस इज द की टू नेशनल सिक्योरिटी. सो in this topic we'll write introduction as to how, what is the current situation, है ना? इसमें हम अपना इंट्रो जो है वो करंट हैवी रख सकते हैं, लाइक वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन क्रूड, है ना? वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन pharmaceutical industry also, we are import dependent for electronics also. So we can write that an intro. Then in the body we can write how self reliance will become and or is the key to the national security. इसमें हम और अपनी स्कीम्स भी शो कर सकते हैं. why government is pushing for PLI scheme, आत्मनिर्भर, make in India 2.0, what sectors are covered in it, and what benefits we as a country will get from self reliance, है ना? आत्मनिर्भरता से हमें क्या फायदे हो सकते हैं, है ना? And what tech autonomy in today's geopolitical order will offer to us, है ना? हम इसमें सैंक्शंस की बात कर सकते हैं, सप्लाई चेन की बात कर सकते हैं कि सप्लाई चेन डिसरप्शन जो चाइना कॉज कर सकता है, जो उसने किए थे व्हेन टैरिफ वाज इम्पोज्ड बाय यूएस ऑन चाइना, देन वो क्यों बाहर आ पाए उससे? बिकॉज इट वाज सेल्फ रिलायंट. इंपोर्ट्स के मामले में चाइना काफी हद तक सेल्फ रिलायंट है. सो दैट हेल्प्ड इट टू ओवरकम द सैंक्शंस imposed by the US, but we had to conclude a trade deal with US. So that if अगर हम autonomous होते, self reliant होते अपने imports में, तो हम भी कर सकते थे, है ना? And in the conclusion we can write how Atmanirbharta has become a strategic necessity in today's geopolitical order and what more can be done. What more can be done, है ना? डिफेंस कॉरिडोर्स एक्सेट्रा सरकार जो कर रही है, थोड़े से एक दो चैलेंजेस हम लिख देंगे एंड व्हाट मोर कैन बी डन. सो दिस विल कंप्लीट योर essay ऑन दिस टॉपिक. आई होप आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया होगा कि ऐसे को कैसे लेना है ना? द बेसिक स्ट्रक्चर. नाउ देयर आर वेरियस अप्रोचेस ऑफ ऐसे राइटिंग, है ना? मल्टीपल, हर स्टूडेंट देखो, डिस्क्रिप्टिव पेपर में यही होता है कि हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट का अपना अलग तरीका होता है ऐसे लिखने का. एक ऐसे को अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है एंड नो टू एसेस कैन बी सेम, है ना? जो मैं ऐसे लिखूंगा और जो आप ऐसे लिखेंगे वो बिल्कुल अलग भी हो सकता है. मोर स्ट्रक्चर सेम होगा, कंटेंट थोड़ा बहुत सेम हो सकता है, बट लिखने का तरीका, लिखने की लैंग्वेज, दैट विल बी डिफरेंट. एंड वही पेपर टू को, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, उनको अलग बनाता है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पेपर्स. सो ईच अप्रोच सूट्स डिफरेंट टॉपिक्स. हर टॉपिक के लिए एक अलग अप्रोच होती है. अगर क्रोनोलॉजिकल है, वील सी, है ना? सो वी हैव टू चूज वेरी केयरफुली एंड डेलिबरेटली. हर अप्रोच जो भी हम ऐसे पे यूज करेंगे, वी हैव टू चूज इट वेरी केयरफुली.
ठीक है। सो द फर्स्ट अप्रोच इज क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच आप उन एसेज में यूज कर सकते हैं जहां पे टाइमलाइन, एवोल्यूशन टाइप के टॉपिक्स हैं। ओके। जैसे एवोल्यूशन ऑफ इसरो, है ना, हाउ इसरो इवॉल्व, एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। यस। तो जो भी एवोल्यूशन टाइप के टॉपिक्स होंगे उसमें आपको क्रोनोलॉजिकल अप्रोच यूज करनी है। इसमें आप अपना इंट्रो दिखाएंगे। इंट्रो में यू कैन मेक इट करंट हैवी। जो भी क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में यू कैन मेक इट करंट हैवी, यू कैन शो द करंट सिचुएशन, और यू कैन शो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई इसरो, व्हाट अचीवमेंट्स उसके हैं, वो भी हम इंट्रो में लिख सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में डेफिनेशन काम नहीं आएगी, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, दे राइट डेफिनेशन इन द इंट्रोडक्शन। अच्छी अप्रोच है, कोई इसमें गलत नहीं है, बट क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में डेफिनेशन लिखना डजंट मेक सेंस। सो आप एक ब्रीफ इंट्रो में उसका लिख सकते हैं कि व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई इसरो वाज इम्पोर्टेंट, व्हाई सक्सेस ऑफ इसरो वाज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया सिंस इज इंडिपेंडेंस, है ना। तो हम वैसा भी लिख सकते हैं। फिर बॉडी में, अपने बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं इन डिफरेंट टाइमलाइंस, है ना, लाइक टिल 1970s, देन 1970 से 2000, देन 2000 से अभी तक, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वो आपका बॉडी में कवर होगा। करंट सिनेरियो भी आप बॉडी में ही दिखाएंगे, है ना। देन इन द लास्ट पैरा और द कंक्लूडिंग पैरा यू कैन शो what the future holds for whatever topic you are writing. If you are writing to for ISRO, then आप लिख सकते हैं कि फ्यूचर में इसरो के क्या प्लान्स हैं, एंड व्हाट गवर्नमेंट शुड डू टू हेल्प इसरो, है ना, बाय इन्वेस्टिंग मोर इन R&D, by giving it more funds, by giving a slight more autonomy to the scientists, है ना। तो ऐसे करके, एंड व्हाट चैलेंजेस आर देयर, स्टिल देयर, एंड हाउ दे कैन बी नेविगेटेड, ऐसे करके आप क्रोनोलॉजिकल एसेस को डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब इसके इंट्रो में आप लिख सकते हैं ना कि व्हाट वर द बेसिक थिंग्स विच शेप्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आप प्राइम मिनिस्टर नेहरू की बात कर सकते हैं, आप इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो सिचुएशन थी उसकी बात कर सकते हैं। इट वाज अ एरा ऑफ पावर ब्लॉक्स, आप उसकी बात कर सकते हैं ना, कि इंडिया ने कोई पावर ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया, इंडिया चोज टू रिमेन न्यूट्रल, नॉन अलाइनमेंट, ये सब आप दिखा सकते हैं। देन इन द बॉडी यू कैन डिवाइड इट इन पैरास, 1947 to 61, 70s to 90s, है ना, आफ्टर 2000, एंड फ्यूचर भी आपको शो करना पड़ेगा कि अब भाई इंडिया इज फॉलोइंग मल्टी अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वी आर डीलिंग विद एवरी कंट्री बेस्ड ऑन आर इंटरेस्ट, एंड इन द कंक्लूजन आपको एक गुड एंड पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है। गुड एंड पॉजिटिव नोट पे आप खत्म करने के लिए क्या लिख सकते हैं कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट हैज मेच्योर्ड फ्रॉम मॉरल आइडियलिज्म टू pragmatic leadership. Pragmatic means practical. Pragmatic means practical. Hmm? तो अब वी आर डीलिंग विद सिचुएशन अकॉर्डिंग टू आर इंटरेस्ट, है ना। तो वी कैन राइट दिस, सो दिस बिकम्स अ मॉडल स्ट्रक्चर। और भी तरीके हैं इसको लिखने के, है ना। यस, सेम, ये भी क्रोनोलॉजिकल का ही पार्ट है। लाइक जर्नी ऑफ विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो अ क्रोनोलॉजिकल ऐसे। इसमें जिसमें भी जैसे जर्नी एवोल्यूशन की बात होगी, इसमें यू कैन यूज क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। इन द इंट्रोडक्शन यू कैन राइट व्हाट विमेन एम्पावरमेंट इज, एंड व्हाई विमेन एम्पावरमेंट इज important for, especially for a developing country like India,
एंड विकसित भारत, ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं कि विकसित भारत ट्रूली तभी होगा जब women empowerment is achieved in a true sense. Then you can divide the body of your essay into various timelines, है ना, लाइक प्री इंडिपेंडेंस में क्या था, 1950 से 2000 तक क्या सिचुएशन थी, आफ्टर 2000 क्या सिचुएशन है, एंड व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर women of our country, for the women empowerment, what government is doing, what still challenges हैं, है ना, what policies can be made. Yes, so this all can you can write in the essay. And एंड करेंगे आप एक फॉरवर्ड विजन पे, फॉरवर्ड विजन एज टू व्हाट मोर कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट एंड बाय सोसाइटी। हर बार गवर्नमेंट का ही अकेला काम नहीं होता ना, सोसाइटी ऑल्सो हैज टू डू इट्स रोल, सो दैट यू ऑल्सो हैव टू राइट। सेकेंड अप्रोच इज थीमेटिक अप्रोच, है ना, थीमेटिक अप्रोच, इसको बहुत सारे लोग पेस्टल भी बोलते हैं, पेस्टल अप्रोच। इट इज नथिंग बट टू कवर वेरियस डायमेंशंस इन योर ऐसे, है ना, आप जो भी ऐसे लिख रहे हैं उसको आप सोशल डायमेंशन से, इकोनॉमिक से, डेवलपमेंटल से, एंड अपना पॉलिटी के एंगल से, इकोनॉमिक के एंगल से, साइंस के एंगल से, सब तरीके से आप हर दो तीन लाइंस में आप उसको कवर करेंगे तो योर ऐसे विल बिकम मल्टी डायमेंशनल। यस, तो जितना मल्टी डायमेंशनल होगा आपके मार्क्स उतने ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहेंगे, है ना। सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप ऑफ ऐसे वुड गो इंट्रोडक्शन, then you will cover the first dimension, second dimension, third dimension. If आपके पास कुछ और भी है then you can cover that also. Then in the conclusion you have to show the way forward. Okay, इसके लिए अगर हम एग्जांपल लें तो डिजिटल इंडिया का टॉपिक मैंने लिया है एग्जांपल में, डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। इसमें आप डिजिटल इंडिया का क्या मीनिंग है ये शो कर सकते हैं इंट्रो में, है ना, intro में you can show this. Then you can cover various aspects of digital India, the political aspect, transparency and accountability वाला, है ना, RTI, e-governance, my gov app, citizen charter, this you can cover. इकोनॉमिक एंगल के लिए आप यूपीआई का शो कर सकते हैं, हाउ यूपीआई रिवॉल्यूशन हैज हेल्प्ड इंडिया, स्टार्टअप्स, हाउ स्टार्टअप्स आर बूमिंग, हाउ इंडिया हैज बिकम अ मेजर स्टार्टअप हब इन द वर्ल्ड, है ना, फिनटेक का बूम आया जो फोन पे, गूगल पे, ये सब आप लिख सकते हैं। सोशल एंगल कवर करने के लिए यू शुड राइट अबाउट डिजिटल लिटरेसी, हाउ इट स्टिल अ चैलेंज, ई हेल्थ, है ना, टेली कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी, टेलीमेडिसिन, ई मानस, दिस ऑल यू कैन राइट इन द सोशल एंगल। देन व्हाट चैलेंजेस आर स्टिल देयर, क्या चैलेंजेस हैं डिजिटल इंडिया के लिए, साइबर सिक्योरिटी इज अ चैलेंज, डिजिटल डिवाइड इज अ चैलेंज, सो ऑल दिस यू कैन राइट इन द challenges and then you can end your essay with way forward as to what can be done to tackle these challenges। कभी भी अपना ऐसे challenges पे खत्म नहीं करना है, हमेशा उसका solution भी बताना है, whatever challenges you are mentioning उसके solution भी देने हैं, so that your essay becomes positive and future oriented। ठीक, ऐसे सिमिलर टॉपिक है ये क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज डेवलपमेंट। इसमें आप क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो इकोनॉमिक होंगे, सोशल होंगे, इन्वायरमेंटल होंगे, पॉलिटिकल होंगे, ये आप शो कर सकते हैं ना। चैलेंजेस में ये बन जाता है कि आप जो भी कवर कर रहे हैं यू हैव टू स्टे विद इन द वर्ड लिमिट। 300 वर्ड्स में आपको you have to cover multiple dimensions, so that becomes this becomes a challenge while writing essays under this approach, है ना। तीसरी अप्रोच जो होती है वो होती है एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच कैसी कि इसमें हमें कॉज दिखता है कि दिस इज द कॉज, इसके क्या इफेक्ट्स हैं एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर इट। समझ आया। दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज बेस्ट सूटेड फॉर गवर्नेंस टाइप ऑफ एसेस, इकोनॉमी पे जो बेस्ड एसेज होंगे, सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट पे बेस्ड जो एसेज होंगे, है ना। सो द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर दिस काइंड ऑफ अप्रोच गोज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप जो भी कॉज है उसको आप एड्रेस कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है इन द टॉपिक वो आप उसको थोड़ा सा आप उस पर
डील कर सकते हैं. देन यू कैन टेल द कॉजेज ऑफ द, जो भी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि उसके क्या कॉजेज हैं. मल्टीपल कॉजेज यू शुड गिव, मल्टीपल डायमेंशन यू शुड कवर. देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर तरीके से, हर मल्टीपल डायमेंशंस पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं. एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस हमेशा शो करने हैं. एंड कंक्लूजन में व्हाट गवर्नमेंट एंड सोसाइटी कैन डू. नेवर राइट कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए. ऑलवेज राइट कि गवर्नमेंट के साथ साथ सोसाइटी का भी काम है ना. हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती. सो ऑलवेज शो व्हाट सोसाइटी एंड व्हाट इंडिविजुअल्स कैन डू. ओके. फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके के अप्रोच के लिए एक टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट द साइलेंट क्राइसिस. इसमें आप बता सकते हैं हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम ना. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड. व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, ये आप इंट्रो में आप छोटे से उसमें बता सकते हैं. देन यू कैन, in the body you can show the causes, that skill gap is there. Around 4% of the total population of India is skilled, है ना. It is very less. Around 150 crore population में से 4% skilled हैं. Automation, AI boom, growth of population, not able to utilize the demographic window properly. In other states I'm talking about, especially Bihar and UP. So this you can write in the causes. Then you can show कि क्या इम्पैक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का इन सब का ऑन इंडिया, है ना. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा. देन यू शुड शो द सोल्यूशन. सोल्यूशन में भी यू शुड शो द ऑनगोइंग सोल्यूशन कि गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है इन एवरी डायमेंशन, है ना. सोशली क्या कर रही है, इकोनॉमिकली क्या कर रही है, पॉलिटिकली क्या कर रही है. यू शुड राइट दैट. एंड व्हाट मोर कैन बी डन, है ना. इन कंक्लूजन में व्हाट मोर कैन बी डन you have to write. You can end in a positive tone like employment and reduction of employment is that India's true social security scheme. इस तरीके से आप end कर सकते हैं ना. नेक्स्ट अप्रोच इज फॉर फिलोसफिकल एसेज, है ना. फिलोसफिकल एसेज का जो ट्रेंड बढ़ गया है, लाइक हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये सब आजकल आने लगे हैं ना. पिछले साल भी आया था, 23 में भी आया था. सो दिस इज फॉर द फिलोसफिकल एसेज. इसमें जो भी आपको वैल्यू दी गई है, जो भी आपको आइडिया दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यू आर एबल टू करेक्टली इंटरप्रेट इट, है ना, थ्रू मॉरल एंड रियल लाइफ लेंस. ऐसा ना हो कि आप जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो कुछ गलत ही निकल आए. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर यू आर इंटरप्रेटिंग इट शुड बी करेक्ट थ्रू द मॉरल लेंस एंड द रियल लाइफ लेंस. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, the structure of such philosophical essays, for within the 300 word limit, it should be, you should be able to define कि क्या वैल्यू दी गई है हमें, है ना. व्हाट फ्रीडम एक्चुअल, जैसे फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ माइंड. सो व्हाट फ्रीडम इज एक्चुअली, फ्रीडम विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ लॉज एंड फ्रीडम बियॉन्ड लॉज, है ना. इफ द स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रही है तो इधर आपको क्या दिखाना पड़ेगा, फ्रीडम बियॉन्ड लॉज, जो भी कंट्री के लॉज होते हैं उसके बियॉन्ड. फिर उसको आप इंटरप्रेट करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग, आई करके आप कभी मत लिखना. मैं अगर आपके अकॉर्डिंग बोला तो डोंट यूज आई वर्ड्स in your essays. This will make it a vlog kind of thing. So interpretation में आपको लिखना है कि what this value, इसका क्या मतलब होगा from moral lens, and what it is its implementation in the real life, है ना. फिर आप उसको illustrate कर सकते हैं by giving examples of leaders, है ना. like for freedom is a state of mind में आप गांधी नॉन वायलेंस की बात कर सकते हैं, नेल्सन मंडेला की फॉरगिवनेस की बात कर सकते हैं, गौतम बुद्धा के मिडिल पाथ की बात कर सकते हैं, है ना. देन यू हैव टू जनरलाइज इट. जनरलाइजेशन में आप क्या करेंगे, जो भी वो वैल्यू दी उसको मॉडर्न कंटेक्स्ट में आप अप्लाई करेंगे, है ना, कि मॉडर्न जनरेशन में इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है. एंड कंक्लूड इन अ गुड मैनर, उसको एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है. ठीक. जैसे मॉडर्न कंटेक्स्ट में फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम सोशल बायस, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम ऑर्थोडॉक्सी, फ्रीडम फ्रॉम स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग, ऐसा सब हम लिख सकते हैं ना.
and we can conclude it like true freedom is inner discipline and absolute happiness, मोक्ष मिलना जिसे कहते हैं, दैट इज ट्रू फ्रीडम। सिमिलर एक टॉपिक है, हैप्पीनेस इज नॉट अ गोल बट अ जर्नी, ये PYQ भी है ना। एंड द लास्ट अप्रोच विच I'll discuss this comparative approach। कंपैरेटिव अप्रोच क्या होती है? इसमें आप दोनों साइड्स को एड्रेस करेंगे, उसके फायदे उसके नुकसान, एंड रैशनली कंक्लूड करेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज बेस्ट फॉर डुअल नेचर टॉपिक्स लाइक टेक्नोलॉजी, इज इट गुड फॉर सोसाइटी और नॉट, है ना, मीडिया बून और बेन, ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स और उसके नुकसान, है ना। सो यू सिंपली आप इंट्रोडक्शन में उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसका करंट सिनेरियो लिख सकते हैं। देन इन द बॉडी आप एक साइड को एड्रेस करेंगे, देन दूसरी साइड को एड्रेस करेंगे, देन अ बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड, जो भी दोनों साइड के चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करके एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग नोट पे आप अपना कंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी अ बोन और अ बेन, इसमें आप इंट्रो में क्या लिख सकते हैं कि हाउ करंट जनरेशन हैज बिकम टेक ओरिएंटेड, टेक डिपेंडेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई है, हर काम पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सब टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है ना। सो दिस विल बी योर इंट्रोडक्शन, दिस कैन बी योर इंट्रोडक्शन, और भी हो सकते हैं। फिर बॉडी में आप एड्रेस करेंगे कि क्या फायदे हैं टेक्नोलॉजी, अब बून मतलब व्हाट बेनिफिट्स डज टेक्नोलॉजी ऑफर इन वेरियस फील्ड्स इन वेरियस, सो आपको इसको मल्टी डायमेंशनल बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एजुकेशन के बारे में लिख देंगे, बाकी आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, है ना। सो यू हैव टू मेक इट मल्टी डायमेंशनल। देन नुकसान क्या होंगे टेक्नोलॉजी के, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, right? So you will write this in the Bain key. What are the threats or drawbacks of getting too much tech oriented or too much technology dependent? There is cyber security threat, privacy threat, loss of jobs by automation, social media addiction, especially in the students and youth, है ना। And you can write कंक्लूजन हमेशा बैलेंस रखना है, किसी की भी साइड नहीं लेनी है ना। सो टेक्नोलॉजी कैन बी गुड कैन बी बैड टू, इट इज लाइक अ कॉइन विच हैज डुअल साइड्स, डिपेंड्स ऑन द यूसेज, है ना। ह्यूमन यूज डिसाइड्स इट्स इम्पैक्ट, हाउ इज इट यूज्ड। अगर अच्छे कामों के लिए यूज कर रहे हो तो अच्छा इम्पैक्ट होगा, गलत कामों के लिए यूज कर रहे हो तो गलत इम्पैक्ट होगा। सो दिस इज हाउ यू शुड कंक्लूड, हमेशा बैलेंस्ड रखना है ना, किसी की भी साइड नहीं लेनी है। सिमिलर ग्लोबलाइजेशन और नेशनल आइडेंटिटी, इसमें आप ग्लोबलाइजेशन को एड्रेस करेंगे इन द इंट्रोडक्शन, और इसमें आप इंडिया के LPG रिफॉर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं एज टू व्हाई इंडिया चोज ग्लोबलाइजेशन। फिर बॉडी में आप इसके फायदे बता सकते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिर व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज टू कल्चरल इरोजन, लॉस ऑफ लोकल आइडेंटिटी, इंक्रीज इन कंज्यूमर कल्चर, ये सब। देन बैलेंस टोन पे इसको खत्म करना है एज टू globalization should turn into globalization as to globalization plus localization, है ना, जिसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन हो लोकल वैल्यूज के साथ। उसमें आप मैकडी का एग्जांपल लिख सकते हैं एज टू मैकडी ऑफर्स महाराजा पनीर बर्गर इन इंडिया, है ना। US में तो महाराजा पनीर बर्गर नहीं दे रहा है ना, वो इंडिया में ही दे रहे हैं ना। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट, ठीक। सो लिखना है, बट ऐसे में आपको इंश्योर करना है दैट you have enriched the content of your essay by data, schemes, and if possible quotes भी लिख देना। अब देखो everyone prepares a lot of quotes कि इस तरीके का टॉपिक आएगा तो मैं ये कोट लिख दूंगा, ये कोट लिख दूंगा, बट हार्डली ऑन द एग्जाम डे हम कोट लिख पाते हैं एकदम से, है ना। सो ट्राई करो कि यार एक दो कोट आप अपने चार में से किसी एक ऐसे में भी लिख पा रहे हो, तो इट विल श्योरली इंक्रीज योर मार्क्स। फॉर डेटा यू शुड उस साल का इकोनॉमिक सर्वे आपको पता होना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, है ना। UNDP का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ऑल दीज थिंग्स यू कैन कोट। नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो आप कोट कर सकते हैं, वेरियस मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट्स आप कोट कर सकते हैं, नंबर्स कोट कर सकते हैं, NCRB डेटा आप कोट कर सकते हैं, है ना।
जितना ज्यादा आप डेटा लिख पाएंगे उतना अच्छा आपका ऐसे होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी कुछ प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है, लाइक डिजिटल इंडिया, पीएम गति शक्ति फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटी बचाओ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल इंडिया टू इम्प्रूव स्किल, है ना, इस तरीके की मल्टीपल स्कीम्स आते हैं, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ऑल दीज स्कीम्स यू शुड राइट इन योर ऐसे। वेर एवर यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेंशन अ स्कीम, प्लीज डू इट। शर्माना नहीं है स्कीम लिखने में, है ना, लिख दो। एंड सेम गोज विद द कोट्स, इंट्रो कंक्लूजन बॉडी, कहीं भी अगर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपके कोई भी कोट फिट कर सकते हो जो आपको पता है, तो प्लीज उसको लिख दो। अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो नेल्सन मंडेला का एक कोट है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, लिख दो। कुछ बुराई नहीं है कोट लिखने में, इनफैक्ट आपका ऐसे और एनरिच होगा उससे। ठीक। बट ऐसा भी नहीं है कि आप कोट्स ही कोट्स लिख रहे हैं अपने ऐसे में, पोएट्री नहीं लिखनी है ना। सो यूज ओनली 1 to 2 कोट्स पर ऐसे, एंड मेक श्योर दैट आप उसको लॉजिकली लिंक कर पा रहे हैं जो भी आप लिख रहे हैं उससे। ऐसा ना हो कि आउट ऑफ द ब्लू आपने उठा के कोई भी कोट लिख दिया जो आपके ऐसे से मैच ही नहीं होता है ना। सो ऐसा भी नहीं करना है। योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल, कोई शेक्सपियर वाली इंग्लिश नहीं लिखनी है, बट इट शुड बी फॉर्मल। नॉर्मल बोलचाल की इनफॉर्मल इंग्लिश मत लिख के आना, इंग्लिश मत लिखना, है ना। आजकल की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बच्चे इंग्लिश में लिख देते हैं। Am I right? So English मत लिखना। Focus over focus on clarity rather than ornamentation of your essay. डेकोरेटिव लैंग्वेज लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका ऐसे छूट ही जाएगा, पूरा ही नहीं कर पाओगे, है ना। प्रिफर राइटिंग एन एक्टिव वॉइस rather than passive voice. यूज लॉजिकल वर्ड्स टू कनेक्ट योर पैराग्राफ्स, है ना, जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, लाइक मोर ओवर, कॉन्सिक्वेंटली, इस तरीके के ऐसे, एडिशनली, ये सब वर्ड्स लिख के आप अपने पैराग्राफ्स को कनेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर, henceforth, thus, in conclusion, all these things you can write, and make sure that you are leaving at least one line between your paragraphs। जब भी पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो आप एक लाइन छोड़ दें, जिससे आपका ऐसे थोड़ा क्लियर एंड नीट दिखे। इट शुड बी क्लियर, साफ सफाई दिखनी चाहिए, हौच पौच नहीं लगना चाहिए, है ना। एंड यू शुड अंडरलाइन योर की टर्म्स, जो भी आपको लग रहा है कि दिस इज द की टर्म ऑफ योर पैराग्राफ, उसको आप अंडरलाइन कर दें, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरे ऐसे को अंडरलाइन करते जा रहे हैं आप, दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग, है ना। सो ओनली अंडरलाइन और हाईलाइट की टर्म्स ओनली, है ना। मेंटेन नीट हैंड राइटिंग एंड कंसिस्टेंट मार्जिन, मार्जिन के बाहर जाओगे तो पेनल्टी लगेगी। एंड योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट। मेरी हैंड राइटिंग में मत जाना यार, मेरी राइटिंग डिजिटली थोड़ी खराब है, ऑन पेपर इट इज गुड। सो, है ना, हैंड राइटिंग हमेशा अच्छी ही लिखना है पेपर में। देन नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड। मिस्टेक्स के लिए, अवॉइड राइटिंग ऑफ टॉपिक, है ना, टॉपिक से भटकना नहीं है। 300 वर्ड की ही लिमिट है, ट्राई करना है कि हम टॉपिक पे ही लिख रहे हैं। अपने ऐसे को नरेटिव नहीं बनाना है, स्टोरी नहीं लिखनी है ऐसे में, टू द पॉइंट लिखना है। प्रॉब्लम लिखो, सोल्यूशन लिखो, कंक्लूजन लिखो, इंट्रो लिखो, खत्म करो, है ना। ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। नरेटिव लिखने बैठोगे तो आधे घंटे तक एक ही ऐसे लिखते रह जाओगे। ओवर यूज ऑफ कोट्स एंड डेटा, कोट्स एंड डेटा को उतना ही यूज करो जितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा नहीं कि डेटा लिखने के चक्कर में आपने अपने उसको एक रिपोर्ट बना दी है पूरी, उसमें आप टेबल वेबल शो कर रहे हैं, पाई चार्ट बना रहे हैं, ये सब नहीं करना है ना। डोंट राइट इन पॉइंट्स, ऑलवेज राइट इन पैराग्राफ। मेंटेन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, अपने पैराग्राफ्स के बीच में ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक मोर ओवर, हेंसफोर्थ, ये सब यूज करो। रिपीटिशन ऑफ आइडियाज मत करो पैराग्राफ्स में। एक अगर आपने डायमेंशन को कवर कर दिया है, देन उसको खत्म करके ही दूसरे डायमेंशन पे जाओ, उसको रिपीट मत करो इन मल्टीपल पैराग्राफ्स। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स पे भी ध्यान देना है। लोग सोचते हैं कि चल जाएगा, बट नहीं भाई, नहीं चलता है। योर ग्रामर शुड बी करेक्ट, द स्पेलिंग्स विच यू आर राइटिंग वो भी करेक्ट होनी चाहिए, है ना। एंड यू शुड नॉट रिफ्लेक्ट योर इमोशनल और आइडियोलॉजिकल बायस while writing an essay or argument or report। ठीक। डिस्क्रिप्टिव पेपर में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि बच्चे लिखते 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 जो भी उनके मन में है वो लिख देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। राइट वेरी डिप्लोमेटिकली,
राइट एज इफ यू आर न्यूट्रल। राइट एज इफ नहीं, आप न्यूट्रल होके ही लिखो। ठीक है। सो जब भी आप ऐसे लिखेंगे, दिस इज अ चेकलिस्ट जो ऐसे लिखने के बाद आपको देखनी है कि क्या आपका इंट्रो सही है। ठीक। क्या मैंने मल्टीपल डायमेंशंस कवर करे हैं अपने ऐसे में। क्या जो भी मैंने पैराग्राफ्स लिखे हैं वो उनका ट्रांजिशन स्मूथ है, द स्ट्रक्चर इज करेक्ट और नॉट, मेरी स्पेलिंग्स और ग्रामर सही है कि नहीं, है ना। ये रिपीट हो गया है। एंड एक और होगा, हैव आई कंक्लूडेड इट ऑन द पॉजिटिव नोट और नॉट, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑन पॉजिटिव नोट और नॉट। ठीक। सो जो भी आप ऐसे लिखेंगे, इट इज नॉट अबाउट लिटरेरी फेयर बट स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। जो भी आप लिख रहे हैं उसमें आपकी क्लैरिटी शो होनी चाहिए। आपका जो 300 वर्ड का ऐसे होगा, एक मिनी पॉलिसी नोट की तरह होना चाहिए। इट शुड बी कंसाइज, बैलेंस्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक, है ना। आपका जो भी ऐसे होगा, इट शुड बी मल्टी डायमेंशनल, फ्यूचर ओरिएंटेड, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैलेंज 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 पे मत खत्म कर देना, है ना। तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नाउ एक 2025 में PYQ का क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, है ना। यस। सो इस पे मैं आपको पूरा ऐसे तो लिख के नहीं दिखा पाऊंगा, बट स्टिल आई विल गिव यू बेसिक स्ट्रक्चर एज टू व्हाट यू कुड हैव रिटन इन दिस ऐसे फॉर 2025 पीपल। 20 अब तो देखो यार, इन द हाइंडसाइट सब अच्छा लिख लेते हैं, आई नो एग्जाम प्रेशर में लिखना मुश्किल होता है, बट स्टिल अगर मैं होता तो मैं कैसे लिखता। आई डिड नॉट गिव 25 अटेम्प्ट। सो अगर मैं होता तो मैं कैसे लिखता। सबसे पहले मैं इंट्रो लिखता। इंट्रो में आई वुड हैव शोन द करंट सिचुएशन, कि डिजिटल वर्ल्ड की करंट सिचुएशन क्या है, हाउ मच टेक डिजिटल डिपेंडेंस इज देयर, है ना। हर चीज से हर चीज में वी आर डिजिटली डिपेंडेंट। सो दैट आई वुड हैव रिटन। ओके। आई कुड हैव आल्सो डिफाइन कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। जब कुछ दिमाग में नहीं आता तो डेफिनेशन लिख दो। एंड टू बी ऑनेस्ट, एग्जाम में सच में दिमाग में नहीं आता इतना, तो साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन भी कर सकते थे, है ना। इसको लिंक कर सकते हैं डिजिटल एज के साथ, लिंक विद डिजिटल एज, है ना। इंट्रो में आप मेंशन कर सकते हैं हाउ डेटा हैज बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट इन टुडेज वर्ल्ड, है ना। डेटा इज द न्यू ऑयल, आप लिख सकते हैं आप कोर्ट में यूज कर सकते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल करके, है ना। देन इन द बॉडी एटलीस्ट 3 पैराग्राफ तो लिखने पड़ेंगे ना। तो फर्स्ट पैरा में यू कैन राइट अबाउट डिजिटल डिपेंडेंस एंड डिजिटल एक्सपोजर फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली, है ना। रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी, बैंकिंग, सोशल सेक्टर, ई गवर्नेंस, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब आप शो कर सकते हैं ना। तो जो भी डिजिटल कनेक्टिविटी है, डिपेंडेंस आप शो कर सकते हैं इन द फर्स्ट पैराग्राफ, है ना। आप ये भी बता सकते हैं कि हाउ इट क्रिएट्स वल्नरेबिलिटी, है ना। हाउ इट क्रिएट्स वल्नरेबिलिटी, डिजिटल डिपेंडेंस कैसे वल्नरेबिलिटी क्रिएट करती है ना। सेकेंड पैरा में आप क्या शो कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या शो कर सकते हैं, आप शो कर सकते हैं
what are the cyber threats? Got it? कि डाटा डाटा ब्रीच होता है, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर फ्रॉड। इसमें आप जामतारा के वो एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, है ना। साइबर एस्पियोनेज, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब आप लिख सकते हैं, राइट। एंड व्हाट challenges does it pose to personal information? है ना, पर्सनल इन्फो के लिए हाउ इज इट अ चैलेंज, ये भी आप लिख सकते हैं। तीसरे पैराग्राफ में आप इम्पोर्टेंस को एड्रेस करेंगे, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कि क्यों साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। टू प्रोटेक्ट द नेशनल एसेट्स ऑफ द कंट्री, टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर ग्रिड्स, है ना, इसरो, हॉस्पिटल्स लाइक एम्स अटैक, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। हाउ साइबर सिक्योरिटी सेफ गार्ड्स आर इकोनॉमी, बिजनेसेस, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर पर्सनल प्राइवेसी। आज के एरा में पर्सनल प्राइवेसी इज अ चैलेंज, है ना। सब कुछ सोशल मीडिया पे आ जाता है। एंड हाउ पॉलिसीज शुड बी डिजाइंड टू इंक्रीज द ट्रस्ट। ट्रस्ट किसमें? डिजिटल इंफॉर्मेशन पे, है ना। हाउ टू इंक्रीज द ट्रस्ट इन डिजिटल इंफॉर्मेशन। एंड इन द फोर्थ पैरा, दैट विल बी योर कंक्लूडिंग पैरा, इसमें आप वे फॉरवर्ड शो कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी ही, इसमें आप वे फॉरवर्ड शो कर सकते हैं एज टू व्हाट measures are being taken by the current leadership, global leadership as well as Indian leadership। इसमें आप एआई समिट्स, है ना, इंक्रिप्शन और ईयू का डेटा लॉ, एआई लॉ है, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। इंडिया का आप सर्ट इन मेंशन कर सकते हैं। एंड what more can be done by the government, by the policy makers, by the think tanks, by society, है ना, by at individual level what can be done, ये सब आप वे फॉरवर्ड में लिख के कंक्लूड करेंगे, है ना। एज टू अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजिटल लिटरेसी, ऑल दिस थिंग यू कैन राइट इन द वे फॉरवर्ड। एंड इस नोट पे आप अपने ऐसे को खत्म करेंगे। सो योर ऐसे विल बिकम मल्टी डायमेंशनल, है ना। मल्टीपल डायमेंशंस आपने कवर किए ना। सो दिस विल इंश्योर दैट यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन योर एसे। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एन एसे, हाउ टू नेविगेट एसे राइटिंग, हाउ टू नेविगेट एसे राइटिंग फॉर पेपर 2 ऑफ सीएपीएफ। आई होप आई वाज एबल टू address most of the queries जो भी बच्चों के दिमाग में होती हैं। एंड similar videos I'll bring for report also, report writing, and for argument also, है ना। argument के लिए भी हम ऐसे videos लेके आएंगे on this channel only। So make sure that you keep studying and keep practicing because paper 2 is all about writing practice। जितनी ज़्यादा writing practice आप करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा लिख पाएंगे, एंड जितना अच्छा लिख पाएंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिल पाएंगे। सो ऑन दिस नोट I'll end this video. Uh, Thank you.